یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے شاملی کے جھنجھانا میں، جہاں حضرت سید امام محمود سبزواری رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کے آرگنائزر رہے جناب صفدر الوی صاحب، اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب امجد الوی صاحب، اس مشاعرے کو خصوصی تعاون ملا جناب بابر حسین الوی صاحب کا۔ اس مشاعرے میں شعراء کا انتخاب کیا جناب وسیم راجوپوری صاحب نے۔ جناب وسیم راجوپوری صاحب راجوپور دیوبند کے مشہور اور معروف شاعر ہیں اور اچھے اور سچے شعر کہہ کے سب کو اپنی شاعری کے ذریعے دیوانہ بنا لیتے ہیں۔ اور اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے رڑکی کے نوجوان خوبصورت شاعر جناب التمش عباس صاحب نے۔ دوستو، ایک یہ واقعہ سچا ہوا، میرے اللہ انہیں رکھے میرے والد محترم، تو میں نے ایک رات ان کو دیکھا تو یہ 4 مصرے ہوئے۔ جوہر بھائی، شبینہ بھابی، میں دعائیں چاہتا ہوں آپ کی اور آپ تمام لوگوں سے، میں 4 مصرے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی۔ پڑھائی چھوڑ، کہرانے والوں شعر سنیے کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی، پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی۔ ارے کیا کہنے، پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی، اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اس کو اکثر، اب اپنے باپ کی ٹانگوں میں ٹانگیں باندھ لوں اپنی۔ ارے کیا شعر پڑھا گیا ہے بھائی، واہ 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 بھائی، زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے دوستو۔ ارے واہ 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 واہ، ارے واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ ارے کیا کہنے وسیم صاحب، بہت عنایت، ارے واہ 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 واہ، حاضر کر، پھر پڑھیے وسیم بھائی، پھر رحمت ہوگی۔ یہ میں حاضر کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی، پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی، اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر، اب اپنے باپ کی ٹانگوں میں ٹانگیں باندھ لوں اپنی۔ بہت شکریہ۔ تو دیکھا دوستو آپ نے کیا سچا اور اچھا شعر ہے۔ دوستو وسیم راجوپوری کا جواب نہیں ہے، اسی طرح کے شعر کہتے ہیں وہ۔ دوستو جیسا کہ وسیم راجوپوری صاحب نے کہا کہ یہ شعر انہوں نے تب کہا تھا جب ان کے والد بیمار تھے۔ دوستو میں آپ سے ایک دم مخاطب جو ہو رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنا درد بھی آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 1 مہینے سے ہم لوگ کوئی پروگرام کور نہیں کر رہے تھے، 1 مہینے سے۔ میرے والد بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہوئے، بس اللہ نے انہیں بچا لیا۔ یہ شعر میں نے بھی محسوس کیا 2nd فلور پر، جب میرے والد جہاں لیٹتے ہیں بیٹھتے ہیں، جب بیمار ہوئے تو مجھے 2nd فلور سے گراؤنڈ فلور تک لانے میں پسینے آ گئے کئی لوگوں کو، کیسے اٹھائیں کیسے نیچے لائیں۔ تب مجھے بھی یہ شعر یاد آیا کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی، پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی، خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کے اکثر کہ اپنے باپ کی ٹانگوں میں ٹانگیں باندھ لوں اپنی۔ دوستو مجھے بڑا خیال آیا، بالکل یہی شعر میرا ذہن اسی شعر تک پہنچا۔ کیا شعر کہا تھا وسیم بھائی نے، یہ مشاعرہ زبردست رہا۔ وسیم بھائی یعنی وسیم راجوپوری، جو راجوپور دیوبند کے مشہور و معروف شاعر ہیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو بھی شعر کہے، ہر شعر پہ تالی ملی۔ اس مشاعرے میں سینئر شاعر جیسے شبینہ ادیب جی، جوہر کانپوری صاحب، خورشید حیدر صاحب، الطاف ضیاء، ان لوگوں نے بھی وسیم راجوپوری صاحب کے اشعار کی پذیرائی کی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے سینے میں ایک دل ہے اور اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، یا آپ زندگی کو بہت بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ اس
वीडियो के अंदर सारे शेर जबरदस्त हैं। बस आपको जरूरत है इन सभी शेरों को गौर से सुनने की, डूब के सुनने की। जी हां, एक औरत जो हमारे समाज में जिसके बच्चे नहीं होते उसे कितने ताने सुनने पड़ते हैं, उसके दर्द को भी बयान किया है वसीम राजूपुरी ने। एक बाप के दर्द को भी बयान किया है, बेटे के दर्द को तो बयान कर ही दिया जिस शेर पर मैंने आपसे बात की है। जी हां, तो ये वीडियो आप देखिए और ये अशार दूसरों तक भी पहुंचाइए और देखिए किस तरह से हर शेर पर वसीम राजूपुरी को दाद मिली है। आइए देखते हैं अब ये पूरा वीडियो नॉन स्टॉप। और गुजारिश करते हैं एक ऐसे शायर से कि जिसने अपनी शायरी से तमाम अहले इल्म दानिश को बड़ा मुतासिर किया। तमाम अहले इल्म हजरात उसकी शायरी के लिए अपनी राय बेहद मोतबर जाहिर करते हैं। गजल हो, नज्म हो, मनकबत हो, नात हो, मुसन्निफ हो और दिगर बहुत असनाफ सुखन ऐसी हैं कि जिसमें उसने तबा आजमाई की है। गजल के हवाले से पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में, नज्म के हवाले से भी, महफिलों में भी अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। एक ऐसा शायर जो अपने जूनियर्स को प्यार मोहब्बत के साथ प्रोटेक्ट करता है, उन्हें रिकमेंड करता है, उन्हें आगे बढ़ाता है। पहली मर्तबा जब मैं आज से 4 या 5 साल कबल इस मुशायरे में बहैसियत शायर आया था तो मुझे लाने वाले वसीम राजूपुरी साहब हमारे इस मुशायरे में जो अपनी काविशों से, अपनी मेहनतों से इस मुशायरे को आरास्तगी में बदलने के लिए बेहद जद्दोजहद करते हैं। जनाब वसीम राजूपुरी साहब वो शायर हैं कि जिनका एक शेर पूरी उर्दू दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है कि दिल का आंगन भीगा भीगा आपके आंसू सूखे हैं, दिल का आंगन भीगा भीगा आपके आंसू सूखे हैं, आज तो अल्लाह काम दिला दे कल से बच्चे भूखे हैं। आइए दोस्तों, एक ऐसा शायर कि जो अपनी दस्ते फिक्र में गजल का आलम थामकर इस वक्त पूरी उर्दू दुनिया में रक्स कर रहा है और तमाम अहले इल्म दानिश उसकी शायरी के लिए अपनी राय बेहद मोतबर जाहिर करते हैं। सिर्फ सामईन ही नहीं, वो किसी रसाले के हवाले से, किसी अखबार के हवाले से नाशना नहीं है, पूरी उर्दू दुनिया उसको जानती है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं अपने बड़े भाई वसीम राजूपुरी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों इस मजमे को इकाई बनाकर इस महबूब शायर का जनाब वसीम राजूपुरी माइक पर। हजरात देखिए, बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। बड़ी खूबसूरती के साथ आप हर शायर को अपनी मोहब्बतों से, अपनी दाद और तहसीन से नवाज रहे हैं। मैं हर साल आपके दरमियान हाजिर होता हूँ, आप अपनी मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजते हैं। मुशायरा एक अदब का एक हिस्सा है, एक मदरसा है, मैंने पहले भी बतलाया था। जरा सा जुड़ के मेरे साथ चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। हमारे दूर दराज इलाकों से भी हमारे यहाँ सामईन कहराने से, टपराने से और आसपास के जो कुर्ब जवाहर में जो कस्बात हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, वहाँ के लोग यहाँ मुशायरा सुनने आए हैं और मुशायरे को कामयाब बना रहे हैं। इस साल का जो मुशायरा है मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह भीड़ जो है वो हर साल से माशाल्लाह बहुत ज्यादा है और बहुत खूबसूरत आप मुशायरा सुन रहे हैं। आपने अखबार के हवाले से, टीवी के हवाले से सुना होगा कि वो 3 तलाकों का जो मामला चल रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका एहतजाज करें, हम उस कानून का एहतजाज करें। मैं बड़ी मेहनतें हैं, तकरीबन 50 साल से हमारे अख्तर हुसैन अलवी मरहूम साहब, मैंने बताया था, वो इस मुशायरे को सजा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ जो शायर आते हैं वो अपना कलाम सुनाएं और उससे हमारी तहजीब, हमारी जो है इधर उधर फैलती जाए और बच्चे जो हैं वो हमारे शायरी से, हमारे जुमलों से कुछ सीख कर जाएं। तो मैं 4 मिसरे यहाँ से पेश करता हूँ आप हजरात की खिदमत में और आपकी दाद, आपकी दुआएं हर साल की तरह मैं चाहता हूँ। जौहर भाई अर्ज करता हूँ, खुर्शीद भाई जी वसीम भाई, अर्ज करता हूँ कि अजल से ताअजल, अजल से याद रखना ताअजल हो ही नहीं सकता। अजल से याद रखना ताअजल हो ही नहीं सकता। कोई कुरान से बढ़कर अटल हो ही नहीं सकता। अजल से याद रखना ताअजल हो ही नहीं सकता। कोई कुरान से बढ़कर अटल हो ही नहीं सकता। और यही कानून है अपना, यही ईमान है अपना, शरीयत
वाह 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 वाह, क्या इस्लाही शेर पढ़ा है, वाह 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 वाह। भाई जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों वसीम राजपुरी साहब। बहुत शुक्रिया। आज करता हूं कि अजल से ताजल हो ही नहीं सकता, अजल से कोई कुरान से बढ़कर अटल हो ही नहीं सकता, और यही कानून है अपना, यही ईमान है अपना, शरीयत में कोई रद्दो बदल हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये मेरा फर्ज था, मैंने इन 4 मिसरों में, क्योंकि मैं एक शायर हूं, तो मैंने इन 4 मिसरों से उस कानून का एहतजाज किया। यहां से मैं अपने रंग की शायरी, जो मुझे पसंद है, जो मैं शायरी करता हूं, जो आप सुनते हैं, वो मैं पेश करता हूं। एक मज़ा और एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि ना समझ है तू, अभी तुझको पता ही क्या है। ना समझ है थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ के सुन लीजिए। असल में हमारे सीनियर शोरा अल्ताफ भाई, खुर्शीद भाई, जमील भाई, जौहर साहब, शबीना भाभी, शाइस्ता सना साहिबा, जहाज भाई, ये तमाम लोग हैं, चाहते हैं कि मुशारे का माहौल बने और हम अच्छी शायरी आपको सुना के जाएं। अर्ज करता हूं कि ना समझ है तू, अभी तुझको पता ही क्या है, इज्जतें खो के तेरे पास बचा ही क्या है। ना समझ है तू, अभी तुझको पता ही क्या है, इज्जतें खो के तेरे पास बचा ही क्या है। और मैंने बेटे का हर एक शौक किया है पूरा, फिर भी बेटे को ये लगता है किया ही क्या है। क्या कहने, मैंने बेटे का हर एक शौक किया है पूरा, फिर भी बेटे को ये लगता है किया ही क्या है। दोस्तों, मुझे इस शेर पे दाद मिली, असल में अच्छे शेर पे कम ही दाद मिलती है। मैं कोई मायूस नहीं हूं, मैं फिर से पेश करता हूं। आज करता हूं कि ना समझ है तू, अभी तुझको पता ही क्या है, इज्जतें खो के तेरे पास बचा ही क्या है। मैंने बेटे का हर एक शौक किया है पूरा, फिर भी बेटे को ये लगता है किया ही क्या है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपके दरमियान की शायरी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अर्ज करता हूं कि उसी आंगन उसी साए में हूं वापस आकर। अगर पसंद आए और दिल को मेरा शेर लगे तो आपकी दाद, आपकी तालियां चाहता हूं, आपकी दुआएं चाहता हूं। सफदर भाई, आज करता हूं कि उसी आंगन उसी साए में हूं वापस आकर, आज मैं कितना खसारे में हूं वापस आकर। क्या कहने, उसी आंगन उसी साए में हूं वापस आकर, आज मैं कितना खसारे में हूं वापस आकर। और बेचकर गांव का घर शहर गया था मैं भी, आज उसी घर में किराए पे हूं वापस आकर। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। अरे क्या कहने वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। आज करता हूं कि उसी आंगन उसी साए में हूं वापस आकर, आज मैं कितना खसारे में हूं वापस आकर। और बेचकर गांव का घर शहर गया था मैं भी, आज उसी घर में किराए पे हूं वापस आकर। और कुछ शायरी आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आज करता हूं कि वो खत तो शौक से पढ़ता है, पढ़कर रोने लगता है। तो सबको शौक से पढ़ता है, पढ़कर रोने लगता है। सुनाकर मुझको ये किस्सा कबूतर रोने लगता है। अरे क्या कहने, वो खत तो शौक से पढ़ता है, पढ़कर रोने लगता है। सुनाकर मुझको ये किस्सा कबूतर रोने लगता है। वो बूढ़े हाथ मजदूरी की खातिर जब भी उठते हैं, सड़क पर टूटता हर एक पत्थर रोने लगता है। अरे क्या कहने वसीम साहब, वो बूढ़े हाथ मजदूरी की खातिर जब भी उठते हैं, सड़क पर टूटता हर एक पत्थर रोने लगता है। अरे क्या कहने, सड़क पर टूटता हर एक पत्थर रोने लगता है। जिंदाबाद हैं आप लोग जो शायरी पे दाद दे रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। देख जी, मैं हाजिर करता हूँ, अर्ज करता हूँ, बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूँ कि वो खत तो शौक से पढ़ता है, पढ़कर रोने लगता है। सुनाकर मुझको ये किस्सा कबूतर रोने लगता है। और वो बूढ़े हाथ मजदूरी की खातिर जब भी उठते हैं, सड़क पर टूटता हर एक पत्थर रोने लगता है। बहुत शुक्रिया। मैं और कुछ ताजा शायरी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मिल जाएगा सवाब। जौहर भाई, मैंने एक व्हाट्सएप पे अक्सर मैसेज वगैरह आते हैं, तो मैंने नज्म किया है, शायद किसी काबिल हो गया हो। सलीम हाशमी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, दुआएं चाहता हूँ सफदर भाई। अर्ज करता हूँ कि सुनिए दोस्तों, मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर। मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर। जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो, और सामान बेचते हैं जरूरत में जो बुजुर्ग, उनसे भी जानबूझ के कुछ ले लिया करो। क्या कहने, अरे क्या कहने, क्या मैसेज है यार, बाबा बाबा।
क्या मैसेज है यार इसमें। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। आप हज़रात शायरी की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपको फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर, जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो, और सामान बेचते हैं जरूरत में जो बुजुर्ग, उनसे भी जानबूझ के कुछ ले लिया करो। दोस्तों, एक ये वाकया सच्चा हुआ, मेरे अल्लाह उन्हें रखे मेरे वालिद मोहतरम, तो मैंने एक रात उनको देखा तो ये 4 मिसरे हुए। जौहर भाई, शबीना भाभी, मैं दुआएं चाहता हूं आपकी और आप तमाम लोगों से, मैं 4 मिसरे शेयर करना चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी। पढ़ाई छोड़, कहराने वालों शेर सुनिए कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं, उड़ाने बांध लूं अपनी। अरे क्या कहने। परों को काट ही डालूं, उड़ाने बांध लूं अपनी, और ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर उसको अक्सर, अब अपने बाप की टांगों में टांगे बांध लूं अपनी। हाय हाय हाय, अरे क्या शेर पढ़ा गया है भाई। वाह 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 भाई, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अरे क्या कहने वसीम साहब, बहुत इनायत। अरे वाह 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 वाह। हाजिर कर, फिर पढ़िए वसीम भाई, फिर रहमत होगी। जी मैं हाजिर करता हूँ। वाह वाह वाह। आज करता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं, उड़ाने बांध लूं अपनी, और ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों में टांगे बांध लूं अपनी। बहुत शुक्रिया। मैं ताज़ा ताज़ा शेर आपके लिए, आपकी खिदमत में हाजिर करने के लिए लाया हूँ। अर्ज करता हूँ जौहर भाई, आप मेरे आइडियल हैं, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। मेरे मोहतरम, मेरे करम फरमा मेरे भाई अल्ताफ जिया साहब, नदीम शाह साहब, जमील भाई, सब लोग मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मैं बिल्कुल ताज़ा शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखिए, मेरे नौजवान जो यहाँ बैठे हैं वो जुल्फ रुखसार की शायरी भी सुन सकते हैं, लेकिन ये शायरी भी सुनिए जो आपके काम आएगी। अर्ज करता हूँ कि बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता, बिगड़ने का किसी सूरत, बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता, हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। बिगड़ने का, मैंने आपको बहुत अच्छा मतलब सुना दिया, लेकिन आप खामोशी से सुन गए। फिर पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता, हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। और शेर सुनिए कि उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक्स करती है, उसी आंगन में बेशर्मी, उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक्स करती है, जहां पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। क्या कहने। उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक्स करती है, उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक्स करती है, जहां पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। फिर एक शेर आ गया, आपकी जिम्मेदारी, आपकी दुआएं, आपकी दाद, आपकी तालियां चाहता हूं कि जहां पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता, जो कातिल हैं खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे, जो कातिल है, जो कातिल है खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे, अगर इंसान मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता। क्या कहने, क्या कहने। जो कातिल है खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे, अगर इंसान मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता। और ये शेर सुन लीजिए और अपने साथ ले जाइए। ये शेर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है, खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है। उस औरत की खता क्या है अगर बच्चा नहीं होता। क्या कहने। अरे वसीम भाई क्या मैसेज है यार। अरे खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है। उस औरत की खता क्या है अगर बच्चा नहीं होता, उस औरत की खता क्या है अगर बच्चा नहीं होता, अगर इंसान मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता। दोस्तों, एक गजल का मुझे हुक्म है, उससे पहले मैं एक मतला और 2-3 शेर पेश करता हूँ। आज करता हूँ दोस्तों,
اور شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ مجھے اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ صفدر بھائی شعر پیش کر رہا ہوں، مطلب پیش کر رہا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ دوستی میں اگر یقین نہ ہو، دوستی میں اگر یقین نہ ہو، الطاف بھائی کہ دوستی میں اگر یقین نہ ہو، پھر یہ کرتے میں آستین نہ ہو۔ دوستی میں اگر یقین نہ ہو، پھر یہ کرتے میں آستین نہ ہو، اور چہرے پڑھ کے بدگمان ہے وہ، اس قدر بھی کوئی ذہین نہ ہو۔ ارے وسیم بھائی، چہرے پڑھ کے بدگمان ہے وہ، اس قدر بھی کوئی ذہین نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ مجھے شعر ہے یار، بھابھی نے دعائیں دی، شائستہ بھابھی کی بھی دعائیں مل رہی ہیں، جوہر بھائی کی دعائیں مل رہی ہیں، میرے لیے اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ دوستی میں اگر یقین نہ ہو، پھر یہ کرتے میں آستین نہ ہو، اور چہرے پڑھ کے بدگمان ہے وہ، اس قدر بھی کوئی ذہین نہ ہو۔ میں ایک غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں، فرمائش ہے میرے دوست کی، میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور چاہتا ہوں کہ آپ نے مشاعرے کا جو خوبصورت ماحول بنایا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں یہی تو ہوتا ہے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، جو لوگ جا رہے ہیں انہیں جانے دیجیے آرام سے۔ عرض کرتا ہوں کہ پہن کر، اصل میں جب مائک پہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، اگر سامنے ایک شخص بھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو شاید ذرا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ دیکھیں بڑی مشکل سے شعر ہوتے ہیں، بہت کئی پتہ نہیں کتنی راتیں کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں، اس کے بعد شعر ہوتا ہے۔ مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں التمش بھائی، عرض کرتا ہوں کہ پہن کر آج خودداری کے جو چشمے نکلتے ہیں، پہن کر آج خودداری کے جو چشمے نکلتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے تھے کل جہاں جوتے نکلتے ہیں۔ کیا بات ہے، پہن کر آج خودداری کے جو چشمے نکلتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے تھے کل جہاں جوتے نکلتے ہیں۔ اور شعر پھر ایک آ رہا ہے، اپنے ساتھ لے جائیے کہ اگر بیٹوں کی خواہش ہے تو کر توبہ گناہوں سے، اگر بیٹوں کی خواہش ہے تو کر توبہ گناہوں سے، سنا ہے باپ کے کردار پر بیٹے نکلتے ہیں۔ اگر بیٹوں کی خواہش ہے تو کر توبہ گناہوں سے، سنا ہے باپ کے کردار پر بیٹے نکلتے ہیں۔ اور جو پیچھے میرے سامنے سامعین تشریف رکھتے ہیں، میرے لیے بہت معزز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں تو میرا تھوڑا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ سنا ہے باپ کے کردار پر بیٹے نکلتے ہیں، بہت احساس ہوتا ہے ہمیں اپنی غریبی پر، بہت احساس ہوتا ہے ہمیں اپنی غریبی پر، کسی اسکول سے چھٹی میں جب بچے نکلتے ہیں، بہت احساس ہوتا ہے ہمیں اپنی غریبی پر، کسی اسکول سے چھٹی میں جب بچے نکلتے ہیں۔ یہ شعر میرا پسندیدہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں الطاف بھائی کہ ہماری مشکلوں کا دور جانے ختم کب ہوگا، ہماری مشکلوں کا دور جانے ختم کب ہوگا، جنہیں آواز دیتے ہیں وہی بہرے نکلتے ہیں۔ ہماری مشکلوں کا دور جانے ختم کب ہوگا، جنہیں آواز دیتے ہیں وہی بہرے نکلتے ہیں۔ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے گاؤں میں کھیتوں کو اپنا بینک کہتے ہیں، ہم اپنے گاؤں میں کھیتوں کو اپنا بینک کہتے ہیں، سنا ہے اے ٹی ایم سے شہر میں پیسے نکلتے ہیں۔ ہم اپنے گاؤں میں کھیتوں کو اپنا بینک کہتے ہیں، سنا ہے اے ٹی ایم سے شہر میں پیسے نکلتے ہیں۔ اور ذرا سا وقت کیا بدلا کہ وہ بھی غیر بن بیٹھے، ذرا سا وقت کیا بدلا کہ وہ بھی غیر بن بیٹھے، وہ جن لوگوں سے اپنے خون کے رشتے نکلتے ہیں۔ ذرا سا وقت کیا بدلا کہ وہ بھی غیر بن بیٹھے، وہ جن لوگوں سے اپنے خون کے رشتے نکلتے ہیں۔ بہت احساس ہوتا ہے ہمیں اپنی غریبی پر، کسی اسکول سے چھٹی میں جب بچے نکلتے ہیں۔ جناب وسیم راجو پوری صاحب اپنے تجربات آپ لوگوں سے شیئر کر رہے تھے۔ وسیم بھائی نے کہا کہ دوستی میں اگر یقین نہ ہو، پھر یہ کرتے میں آستین نہ ہو،
चेहरे पढ़ पढ़ के बदगुमान है वो, इस कदर भी कोई ज़हीन न हो। दोस्तों ये लोग जो जा रहे हैं उठ के, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि मैं उस माइक से उठ के यहां आया हूं तो जरूर कोई अहम बात है, ये अपना नुकसान करने वाले हैं। दोस्तों बहुत खूबसूरत शायरी से हमें नवाज दिया वसीम राजूपुरी साहब ने, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं कि उनके इस मयारी कलाम से हमारे आज के इस मुशायरे के अदबी विकार में इजाफा हुआ। आइए दोस्तों इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं और मुझे फर्क एहसास। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का मुशायरा या कवि सम्मेलन या और प्रोग्राम हम कवर करें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले बेहतर तरीके से मुशायरों को इंटरनेट की दुनिया तक पहुंचाया। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। अब शफी खान को इजाजत दीजिए।